All right. Assalamu alaikum, students. अस्सलाम वालेकुम सर। Wa alaikum assalam.
Okay. Uh, so we start our 27th lecture on Internet of Things. As our normal practice, we ask you if you have any questions from the previous material. Okay. We had started discussing in our last class um, a case study of a robot car. As I told you, this will be one of our group projects, and we also have the kits of a robot car and sensors which go with it. The details of that we will share with you when this your project will start, and you go through the same phases of designing and coding and implementing it. But uh, there are always differences in terms of implementation needs, your targets you want to achieve, the things which are available, alternates which you are using. So those changes you should be able to handle in the light of learning which you do with this robot car. And in the last lecture, we said it will have some kind of role of automated security guard, which will have a camera, which will have a distance measuring sensors, and it will um, have a buzzer, it will have the flashing lights as outputs. Those two are the inputs, these last two are the outputs. The outputs also will move its wheels by DC motors, and it will move its camera and eyes, which it sees for the distance, also in the same way. Um, um, all these things we connect as sensors and control devices which our Raspberry Pi controls, and we looked at the codes which will deal with all these input output sensor devices connected to the Raspberry Pi. We saw those basic codes which in which we tested that how it will move forward and back, how its camera will move around, and how camera will be interfaced, how LED and buzzer, etc., will be interfaced. So we we went through the code for that. Okay, and in the end, we were looking at um, upgradation of that code into the formal class-based object-oriented implementation for the purpose of reusing the same code when we go for its next level of implementation, like getting data from the web dashboard or sending data to web dashboard. So when we get to those levels, we would like to use the code we built at this stage as readily available classes. So we learned the basic working of all these parts uh, of this car in our last lecture. Now we will formally put them together in the form of classes for the purpose of reuse at the later stage. So that is our uh, work we will be doing today. ये किट थी जिसको हमने देखा. इस किट की असेंबल्ड फॉर्म के ये मेजर यूनिट्स थे जो हमने देखे. इनको इंस्टॉल करके आपकी चैसी पे जो तमाम चीज़ें जिनमें योर रास्पबेरी पाई है, योर सेंसर्स हैं इन द फ्रंट, योर आउटपुट डिवाइसेस, योर currents to drive the motors, circuits, etc., and interface added circuit for servo motors, etc. So we had seen the code last time. Now we started looking at how can we modify that code into the classes form. So that
it will have also. We are not reviewing that code because in this modified classes form, that code will reappear. So if you have anything which is not clear from the code of our last lecture, you can still ask questions because it will appear again in the classes form. So in the code we learned all these aspects. So let's look at the same things put together into the classes form. So हमने कोड में सीखा था कि व्हील्स को मूव करने के लिए आगे पीछे कार की मूवमेंट को जो इंस्ट्रक्शंस थी जिनको हमने टेस्ट किया था कि इट विल मूव फॉरवर्ड एंड बैक, उसको हम एज ए क्लास, जिसका नाम हम रख रहे हैं क्लास रोबोट व्हील्स, इस क्लास की शक्ल में उस कोड को हम एम्बेड कर रहे हैं. मेजर पार्ट जो इस कोड का हिस्सा था, जो हमारे काम की चीज़ है देखने की, वो ये है. ये तो वो है हमारा ये from the GPIO 0 library, which we all the time use for interfacing of things with Raspberry Pi, our favorite library. It has, for various devices, it has readily built methods. So it has also a robot method by the known of, not method, a robot class or robot module. So we import from GPIO 0 this robot module, which will help us to move it forward, back, etc. We are putting those code things under this class of robot wheels, and in that we have this is the classes attributes or const or variables these we had connected. We had, when we were building the car, we had connected the left two wheels in parallel with pin 5 and 6, and right two wheels motors uh, in parallel in pin 22 and 27. We went through that detail that there are DC motors connected with the wheels of this car, and here are the pins which we'll be using. So from this robot module, we use that robot module or robot class which was there in this library. We use that class, gave it the parameters left and right as the tuple, and tuple has those pin numbers, GPIO pin numbers, which we are using for left two wheels and right two wheels. So by giving these parameters, this is class, we instantiated our object robot. So this is our now robot thing taken from that class. Once we do that, we can benefit from all the methods which are available in this robot class of this library, and that we definitely used. There is not much to do in the init thing. In fact, this is the part while making the class that init part has happened. So okay, but then there are so many methods which in this class of ours we will be defining. So many methods we are defining based on the methods which are available here. Okay, so we defined a method move forward. Now this is our method defined in robot wheels class, move forward, right? And we use from the robot instance the method of this class robot dot forward. So हम ये यूज कर रहे हैं robot dot forward का मेथड, और उसमें हम ये टाइम दे रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड फॉर 0.2 सेकेंड्स. ये हमने अवेलेबल मेथड को इस्तेमाल किया है. इसमें ऑटोमेटिकली ये वाले पिन नंबर्स जो हमने ऊपर डिफाइन किए हैं उसके तहत
वो क्लास रोबोट डॉट फॉरवर्ड मेथड को इस्तेमाल करेगी जो बिल्ट या हमने इंपोर्ट की है। इसके बेस पे हमने अपना मेथड इस क्लास का ये डिफाइन कर लिया, मूव फॉरवर्ड मेथड। और इसी तरह फिर मूव बैकवर्ड, सेम वे रोबोट डॉट बैकवर्ड्स को यूज करके, टर्न राइट सेम वे रोबोट डॉट राइट को यूज करके टाइम दे रहे हैं साथ। और इसी तरह हमने यहाँ पे मेथड टर्न लेफ्ट यूजिंग रोबोट डॉट लेफ्ट टाइम इसको देके। ओके, हमने टूवर्ड्स द एंड लास्ट टाइम देखा था ये द डांस मेथड। ये डांस कार की व्हील्स पे मूवमेंट वाला डांस है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डांसेस व्हिच यू विल सी इन दिस। एक इसके कार के मूवमेंट व्हील्स के जरिए ऑन द ग्राउंड डांस है, और एक इसका जो कैमरा इंस्टॉल्ड है और डिस्टेंस मयरिंग सेंसर इंस्टॉल्ड है, जिस उस पर वो सर्वो मोटर्स के ज़रिए से मूव कर सकता है और उसमें उसके हेड के पार्ट की डांसिंग का इम्पैक्ट मिलता है। अभी हम ऑन ग्राउंड मूवमेंट ऑफ द कार वाले डांस की बात कर रहे हैं, तो इसको हमने नाम ये दिया। अब ये हमारा मेथड है इसमें। अब ये जो डांस का मेथड है, ये रोबोट व्हील्स जो हमारी क्लास है आप बना रहे हो, इसमें आप ये क्लास को यूज कर रहे हो जो रेडीली अवेलेबल है। इस क्लास के मेथड्स एज आई टोल्ड यू, अगर सीखने में आपने इस्तेमाल भी किए हो या देखे भी हों, हम कई दफ़ा उसकी डिटेल आप लोगों को दिखाते हैं कि हाउ दोज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड, जो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस की। स्टिल आप ये अस्यूम करोगे कि वो आपके पास रेडीली अवेलेबल है। हाउएवर ये क्लास जो अब आप बना रहे हैं इसके लिए खुद, जिसका नाम आपका है रोबोट व्हील्स, इसके मेथड्स हैं ये सारे, और उसी में एक मेथड हमारा जो है वो ये है कि डांस का मेथड। और इसके अंदर हमने अब अपने जो यहाँ इधर पीछे मेथड डिफाइन किए थे, मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, ये जो हमने यहाँ पे अपने मेथड डिफाइन किए मूव फॉरवर्ड, इनको यूज करके हम इसको डांस की सीक्वेंस दे रहे हैं, लाइक स्टेप्स, कि भाई मूव फॉरवर्ड का फॉर 0.5 सेकेंड टाइम दिया, फिर स्टॉप किया, फिर मूव बैकवर्ड के अपने मेथड को कॉल करके 0.5 सेकेंड का गैप दिया, स्टॉप किया, फिर टर्न राइट का मेथड कॉल करके 0.5 सेकेंड टाइम दिया, स्टॉप किया, फिर टर्न लेफ्ट करके 0.5 सेकेंड टाइम दिया, स्टॉप किया। तो ये हमने एक डांसिंग स्टेप्स फॉर आवर व्हील्स ऑफ द कार बनाए। इसमें हम हर जगह ये मेथड यूज कर रहे हैं स्टॉप, तो हमने स्टॉप मेथड को भी डिफाइन किया, स्टॉप मेथड, और वो उसमें हमने रोबोट का स्टॉप, जो रोबोट क्लास हमने इंपोर्ट की थी उसका रोबोट डॉट स्टॉप को यूज किया है। जब हम ये अपना मेथड स्टॉप कॉल करते हैं, इसके अंदर हमने उसको यूज किया हुआ है। ये हमारे सारे मेथड्स अपनी हमारी इस क्लास जिसका नाम हमने रोबोट व्हील्स रखा है उसके हमने बना लिए। अब इसको रन करने और टेस्ट करने के लिए वर्किंग को हमारा एज यूजुअल ये लाइक मेन जैसे होता है हमारा सी वगैरह में हम करते थे उस तरह, नेम इज इक्वल टू मेन। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा स्टैंडर्ड हमारा तरीका है। ये अब हमने एक क्लास बनाई थी खुद, अभी बनाई है। इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे बाय दिस नेम, लेट से ये हमारा नाम है, कुछ भी हो सकता था, रोबोट व्हील्स के नाम से। और फिर इस इंस्टेंस पर अपना ये मेथड डांस वाला ये कॉल किया है। इस डांस वाले मेथड को कॉल करने का फ़ायदा ये है कि जो और सारे मेथड हमने बनाए थे, पीछे बनाए हैं, वो सारे इसमें कॉल होके इनडायरेक्टली वो भी टेस्ट हो गए। तो हमने ये एक डांस मेथड से जो हमारी क्लास का मेथड था, इसको रन करके इसकी टोटल वर्किंग एज ए क्लास चेक कर ली। अब ये दूसरा पार्ट था हेड की मूवमेंट वाला। तो हेड में वही कैमरा और डिस्टेंस सेंसर एट्सेट्रा ये चीज़ें लगी हुई हैं। इसके हमने बेसिक कोड्स पिछली लास्ट क्लास में देख भी लिए हैं,
अब हम उनको भी एज ए क्लास, अपनी क्लास बिल्ड कर रहे हैं जो हमें इस कार के लिए चाहिए। तो बाकी टाइम चीज़ें कॉमन है, या आपने जो यहाँ इस्तेमाल करनी थी, एक तो वही टाइम से स्लीप को इंपोर्ट करना, फिर टाइम से करंट टाइम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, और फिर हमें इसमें कैमरे की ज़रूरत है तो हमने इंपोर्ट कर लिया पाई कैमरा की क्लास फ्रॉम पाई कैमरा लाइब्रेरी। और इसी तरह हमने ये एड अ फ्रूट का डिस्टेंस वाला जो मॉड्यूल इस्तेमाल किया PCA9685, सो एड अ फ्रूट PCA95 उसको भी इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब हमने ये अपनी क्लास बना रहे हैं। अब हम ये एज आई सेड वी आर मॉडिफाइंग अवर बेसिक थिंग, जो हम एक्सरसाइज करवाई थी अपनी कार को, उसको अब फॉर्मल क्लासेस की शक्ल में, अपनी क्लासेस की शक्ल में हम बना रहे हैं। तो पहले एक बनाई थी, अब ये रोबोट कैमरे की क्लास हम बना रहे हैं। ओके, तो हमने इसमें लिया पेन, इसमें सर्वो मोटर्स हैं। उन सर्वो मोटर्स को हमने राइट लेफ्ट एंड अप डाउन मूव करना है। सर्वो मोटर्स के से जिस पे ये कैमरा इंस्टॉल्ड है, उस प्लेटफॉर्म को राइट लेफ्ट और अप डाउन मूव करना है। राइट लेफ्ट मूव करना पैन कहलाता है, अप डाउन मूव करना टिल्ट कहलाता है। और हमने इसको देखा, हमने हॉरिजेंटल मूवमेंट के लिए, पैन मूवमेंट के लिए पैन मिन 150 डिफाइन किया, पैन मैक्स 600 डिफाइन किया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जब आप इसको बिल्ड करते हो और वो रिक्वायर्ड पोजीशन तक अगर ना जाएं, लेट से आप चाह रहे थे वन एक्सट्रीम पैन का और दूसरा एक्सट्रीम पैन तक जाए, तो आप इन नंबर्स को फिर स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हो टू गेट योर ऑब्जेक्टिव एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट। ये इस पैन के अंदर उसने सेंटर के लिए इन दो के दरमियान वैल्यू 375 ये ली है। ये आपने ये वैल्यूज इन कांस्टेंट की दे दी। टिल्ट की भी इसी तरह, अप डाउन के लिए टिल्ट मिन, ये टिल्ट मैक्स, और ये आपने टिल्ट की वैल्यूज दे दी, ये पैन की वैल्यूज दे दी। यहाँ आपने पाई कैमरा का जो ये क्लास या मॉड्यूल लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया था, उससे एक इंस्टेंस अपना बनाया, उसका नाम आपने इस केस में कैमरा रखा। अच्छा, अब आपने ये इस्तेमाल करने के लिए अपनी जो पल्सेस जो जनरेट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग दी सर्वोज, उसके लिए ये एड अ फ्रूट PCA9685.PCA9685 को यूज़ करके ये एड अ फ्रूट को, और अब आपने इसका भी एक इंस्टेंस बना लिया, एक कैमरे का इंस्टेंस बना लिया और एक अपनी सर्वो मोटर्स का इंस्टेंस बना लिया। आपने इनिशियल इनिट में तय किया कि when you start the robot in the beginning, its tilt should be up, यानी अप का जो मैक्स आपका है उस पर टिल्ट अप स्टेप पर वो इनिशियली सेट हो जाए। तो इनिशियलाइज में आपने टिल्ट अप को डाल दिया। अच्छा, फिर आपने अपने मेथड्स, अब इस क्लास में ये आपके मेथड्स हैं। इन मेथड्स में हम जो लाइब्रेरी से आपने इंपोर्ट की होती हैं क्लासेस या मॉड्यूल्स, उनके मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। बट अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट, इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में जो भी काम करना चाहते हैं वो मेथड्स हम बिल्ड कर लेंगे सारे। ये हमारे मेथड्स हैं, ये हमने अपनी क्लास के मेथड डिफाइन किए हैं और उसमें ये सारी चीज़ें हैं, पैन राइट, पैन लेफ्ट, पैन मिड, टिल्ट डाउन, टिल्ट अप एंड कैमरे से टेक पिक्चर्स, ये हमारा। तो इन सब में
बिल्ट इन जो आपने इंपोर्ट किए हैं मॉड्यूल या क्लासेस फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो यूज करके हम अपने मेथड लिख रहे हैं। जैसे अपने पैन के सारे मेथड्स में हमने ये किया है कि ये हमारा इंस्टेंस जो हमने बनाया था सर्वो मोटर्स के लिए, सर्वो मोटर्स का इंस्टेंस EWM बनाया है, उसमें हमने उसके अवेलेबल बिल्ट इन ये एडाफ्रूट का जो सर्वो मोटर्स के लिए हमने वो लिया है डॉट सेट पल्स विथ मॉड्यूलेशन EWM। ये हमने उसका मेथड इस्तेमाल किया है। ये अपने इंस्टेंस में उसके मेथड को यूज करके हमने ये पैरामीटर्स दिए उसके मेथड में, और उसमें पैरामीटर जो हमारे था कि हमने पैन मिन का मेथड थर्ड पैरामीटर्स के तौर पे दिया, तो उससे हमें ये पैन मिन से हमारा राइट मोस्ट पोजीशन पर मूव करके ये स्टैंड चला जाएगा। ये 0 0 है मौजूद। ये फंक्शन काइंड ऑफ फंक्शन सिलेक्शन है कि जैसे यहाँ 0 0 0 0 मीन्स इट इज़ द पैन एक्टिविटी, ठीक। इसी तरह यहाँ पर टिल्ट में 1 0 मीन्स इट इज़ द टिल्ट एक्टिविटी, ठीक। तो ये इन बिट्स का ये रोल है, लेकिन एक्चुअली फिर आपने जो काम करना हो तो वो यहाँ देते हैं, पैन मिन, पैन मैक्स, पैन सेंटर, टिल्ट मैक्स, टिल्ट मिन, और फिर ये टेक पिक्चर्स वाला जो हमारा मेथड है, उसमें आपने पहले 2 सेकेंड्स का जहाँ भी कहीं कैमरा मौजूद है 2 सेकेंड्स का गैप दिया स्टेबल होने के लिए, टू गेट टू दैट, सेट टू दैट पोजीशन वेयर एवर इट इज़ नाउ करंटली। और फिर आपने ये उसके बिल्ट इन अपने इंस्टेंस ऑफ कैमरा पे उसके बिल्ट इन कैप्चर मेथड को इस्तेमाल किया, कैमरा डॉट कैप्चर, और उसके आगे ये आपने फाइल पोजीशन बता दी, ये आपने अपनी फाइल पोजीशन बता दी कि जहाँ ये कैमरा जो कैप्चर करेगा वो डालेगा आपके इमेज को, उसके अंदर ही वो एम्बेड कर देगा करंट टाइम जो आपने इसीलिए ये इंपोर्ट किया था, तो उस वक्त पिक्चर और उसके साथ टाइम डाल के, और ये उसके आगे एक्सटेंशन .png, ये आपको कैप्चर्ड पिक्चर एट दैट टाइम इन दिस फाइल चली जाएगी। ओके, अब ये इसका डांस, ये डांस जैसे मैंने कहा था देयर आर 2 टाइप्स। तो अब डांस आपके इसके हेड का, रोबोट के हेड पे जो कैमरा और वो लगे हुए आईज एंड ऑल दैट, उन चीज़ों का डांस हम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का। पहला डांस उसके व्हील्स का था, उसकी बॉडी के मूव का, लास्ट क्लास में। इसके अंदर इसी है, इस आपकी क्लास में जिसका नाम आपने ये रखा हुआ है रोबोट कैमरा, इसके डांस का ये मेथड है। इसके लिए क्या हुआ, आपने क्योंकि पहले अपने ही इसमें ये मेथड डिफाइन किए हैं, अभी हमने पैन राइट, टिल्ट डाउन, टिल्ट, ये मेथड हमने डिफाइन किए हैं अभी शुरू में इसी में अपनी क्लास में ये डिफाइन किए हैं। इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हमने एक डांस का मेथड डिफाइन किया है, और वो ये है कि पहले ये अपने इस प्लेटफॉर्म को जिस पे कैमरा लगा हुआ है इसको राइट की तरफ ले जाएगा, फिर टिल्ट, ये शुरू में इनिशियली टिल्ट अप था, तो अब टिल्ट में ही ये राइट को चला गया, राइट पे जाके नीचे इसने मुंह को किया, फिर इसने दोबारा अपने सर को ऊपर उठाया, और फिर उसने घूम के अपने सर को लेफ्ट की तरफ कर दिया, और फिर वापस अपना सर को मिडिल में ले आया। तो पैन और टिल्ट की कॉम्बिनेशन से उसने अपने हेड की मूवमेंट्स की हैं, पीछे व्हील्स की मूवमेंट से कार की ने डांस किया था। ओके, ये फर्क हम देख रहे हैं। एक इसी में एक मेथड हमने रखा सीक्रेट डांस, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका ये कुछ आप इसको इन द हॉस्टाइल प्लेस टू कैप्चर इंफॉर्मेशन करना है, तो आपका ये उसमें आपने कैमरा लगाया हुआ है, तो इन एडिशन टू दिस डांसिंग इसका नाम रखा है सीक्रेट डांस।
इसमें क्या है, ये सारे डांसिंग के वही स्टेप्स हैं जो ऊपर हमने देखे, मे बी स्लाइटली डिफरेंट, मगर जब ये पैन मिड पे आया, अब इसने क्विकली टेक पिक्चर किया। टेक पिक्चर का हमने मेथड अभी लिखा था और देखा है पीछे, ये टेक पिक्चर ये हमने यहाँ देखा है। तो इसने सीक्रेट तस्वीरें भी ले ली डांस करते करते। इस क्लास को जो अभी हमने अपने कोड को जिसमें एम्बेड किया, इस क्लास का रन करके हम देखना चाहते हैं। मेन के तौर पे आपने इसको किया, आपने इसका नाम रखा था रोबोट कैमरा, ये आपकी क्लास है। अब ये रोबोट कैमरा आपने क्लास बनाई है। एक मिनट मुझे दीजिए। ओके, ओके, you can again see the slides and hear my voice. Okay? जी जी ओके, सर। ओके। अच्छा, तो हम इसमें यहाँ तक हमने कर लिया था एक। ओके, तो हमने सीक्रेट और नॉन सीक्रेट डांस और उसकी ये टेस्टिंग के अपनी क्लास को इंस्टेंशिएट किया और उसमें अपना ये डॉट डांस डांस मेथड बुलाया और उसके ज़रिए से ये एक्टिविटी। ओके, तो हमारी दो क्लासेस हमने बना ली जिसमें ये पिछले अपने कोड को एम्बेड कर दिया है। अच्छा, अब वो वाले पार्ट के भाई द रोबोट शुड बी एबल टू मेक सम साउंड्स, इट इज़ काइंड ऑफ, हम आगे देखेंगे कि इट विल क्रिएट सम म्यूजिक नोट्स एज इफ इट इज सिंगिंग वाइल डांसिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये रोबोट बीप के नाम से अब हम क्लास बना रहे हैं। इसमें हमने बज़र क्योंकि इस्तेमाल होगा तो उसको इंपोर्ट किया हुआ है और डिले हमने देने हैं तो स्लीप को हमने किया हुआ है। तो इन दो चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इसको वो करेंगे। तो ये हमारी क्लास है रोबोट बीप। ये बज़र की पिन 12 GPI और पिन 12 हम बज़र के लिए इस्तेमाल, वहाँ हमने कनेक्ट किया हुआ है बज़र, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया और अपना ये इंस्टेंस बज़र का डिफाइन किया टॉप पे। ये हमारा तरीका है फॉर एवरीथिंग। जो भी हम GPI और ज़ीरो के तहत सेंसर्स या कंट्रोलर्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऐसे ही हमेशा उसका इंस्टेंस अपना ऐसे ही बनाते हैं।
लाइक ये क्लास है, उस क्लास में आपने पैरामीटर दिया है और उससे अपना इंस्टेंस बना लिया, तो बजर इज योर इंस्टेंस। ठीक, इसी तरह आपने एक नोट्स की अरे ऑफ अरेज डिफाइन की है। नोट्स के नाम से आपने अपनी अरे ऑफ अरेज डिफाइन की है। इसके अंदर हर अरे में 2 पैरामीटर हैं, ये हम देख रहे हैं, ये दो दो, और इस तरह 1 2 3 4 5 6 अरेज हैं। ये नोट्स जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये दो चीज़ें करके हमने इनिशियलाइजेशन में सिर्फ जो प्ले एट द इनिशियलाइजेशन स्टेज फॉल्स रखा हुआ है, और फिर इसको आप ट्रू करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज वैल्यू इनिशियल के वक्त आपने प्ले की इनिशियलाइजेशन फॉल्स की है। जब कभी भी आप इससे ये काम करवाना चाहेंगे तो ये आपका, क्योंकि रोबोट बीप क्लास है, ये उस क्लास का इनिट है और ये उसका पैरामीटर है। तो जब भी आप इस क्लास को अगर इंस्टेंशिएट करें विद दिस थिंग सेट एज ट्रू, तो इट विल कैरी आउट दिस एक्शन जो इस क्लास में आगे हैं, और वो ये है कि अगर प्ले इनिट वाले पैरामीटर को ट्रू करते हैं आप, व्हेन यू कॉल द क्लास, यू कॉल द इंस्टेंस विद दिस पैरामीटर ट्रू, तो फिर ये काम होगा कि बजर ऑन होगा, 0.1 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, फिर बजर ऑफ होगा, ओके। तो जब हम कहेंगे प्ले, तो फिर ये बजर ऑन, 0.1 सेकेंड ऑन, एंड फिर बजर ऑफ और 1 सेकेंड ऑफ। ये एक्टिविटी ये करेगा अगर प्ले इनिट ट्रू है। अगर फॉल्स है तो फिर ये एक्टिविटी नहीं होगी। ये हो गया इनिशियली आपने ये, इसको जब क्लास को आप कॉल करें तो व्हाट शुड हैपन इनिशियली, इससे होगा आपका एक किस्म का बजर का टेस्ट हो गया, अगर आप चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो ओके। अब ये प्ले सॉन्ग के लिए इस्तेमाल करना है आपने, एक्चुअल तो ये आपका एक मकसद था। तो उसके लिए आपने जो नोट्स यहाँ बनाए हैं म्यूज़िक के, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ये आपका वेरिएबल है आपका, आप इस वेरिएबल में असल में ये अरे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका फॉर लूप फॉर दिस नोट्स वाले अरे के लिए है, और उसमें इंडेक्स आप ये इस्तेमाल करें। इंडेक्स क्या है? फॉर नोट इन नोट्स का मतलब है इट विल गो थ्रू वन बाय वन ईच एलिमेंट ऑफ दिस अरे, इट विल गेट टू ईच एलिमेंट वन बाय वन। हम पाइथन में हमारा फॉर लूप का एक तरीका, कॉमन तरीका ये है कि जो लिस्ट है उसके हर एलिमेंट को वन बाय वन अप्रोच करना। एक हमारा रेंज के ज़रिए से जो हम करते हैं वो ये है कि आपके इंटीजर इंडेक्सेस उस रेंज के आपने यूज़ करने हैं जो टिपिकली सी टाइप होते थे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास नॉट बाय द इंडेक्स बट बाय द एलिमेंट्स का है। तो ये आपको डिस्टिंग्विशन रखते हुए इस्तेमाल दोनों को राइट प्लेस पे करना है। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें कि स्कैन थ्रू ईच एलिमेंट, गो टू ईच एलिमेंट वन बाय वन। अब जब वो हर एलिमेंट पे जाएगा तो हम बजर ऑन अप करके उसके लिए टाइम के ऑन कितनी देर हो, वो हम जो उस वक्त नोट आपका है, जैसे बिल्कुल बिगनिंग में ये वाला नोट होगा आपके, तो आपको यहाँ से पहला एलिमेंट लेगा नोट में से और वो है 0.5, तो 0.5 टाइम के लिए ऑन रहेगा। फिर बजर ऑफ आप करेंगे और नोट वन वो ये है, ये भी 0.5,
तो 0.5 के लिए ऑफ रहेगा, फिर ये लूप चलेगा। दूसरे एलिमेंट पर आप आ गए, यहाँ 0.5 ऑन एंड 1 ऑफ, फिर तीसरा 0.2 ऑन 0.5 ऑफ, 0.5 ऑन 0.5 ऑफ, 0.5 ऑन 1 ऑफ, 0.2 ऑन 0.5 ऑफ। ये जो सीक्वेंस ऑफ नोट्स आप इस्तेमाल करोगे इस बजर पर, दिस विल बी लाइक प्लेइंग ए सॉन्ग ऑफ रोबोटिक सॉन्ग ऑफ ए वेरी सर ये ट्रिवियल। दोबारा रिपीट कर देंगे आप? हेलो हेलो। हेलो। जी जी। हेलो सर, रुको सर। सर आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर मैं ये पूछने ये मैं कह रहा हूँ, ये जो स्लीप नोट इंडेक्स 0, ये दोबारा रिपीट कर देंगे? अच्छा जी, ओके, ऑलराइट। मैंने एक तो आपको फॉर लूप जो टिपिकल एक पाइथन की चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाई। हमने ये सीखा था बिगिनिंग से और बहुत सी जगहों पे हम यूज़ कर रहे हैं, मगर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फॉर की तरफ ये तवज्जो दिलाई कि फॉर लूप पाइथन में दो तरह से इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी है। एक वो क्लासिकल तरीके से फॉर लूप इस्तेमाल करना जो इंडेक्स के तरीके से हम करते थे सी में, फॉर आई फ्रॉम 0 टू जो भी मैक्स वैल्यू है। इस अगर हम उस तरह से फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं तो उसका तरीका ये है कि फॉर वट एवर आई और समथिंग इन रेंज, फिर रेंज में वो जो वैल्यूज हैं वो इंडेक्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं उस केस में। एक तरीका ये है कि लेट देयर बी एनी डाटा टाइप, जैसे कि इसमें एक डाटा टाइप था अरे ऑफ अरेज, और हम इस डाटा टाइप के हर एलिमेंट पे जाकर कोई एक्शन करना चाहते थे। ये पाइथन का दूसरा तरीका है कि आप जो भी कोई चीज़ है उसका यहाँ नाम दे रहे हैं, आप वो नहीं कह रहे कि फ्रॉम 0 to 7 और समथिंग, आपने उस डाटा टाइप का नाम दिया है। और अब ये बाय सेइंग फॉर नोट्स इन दैट, ये उसके हर एलिमेंट पर बारी बारी जाएगा, और जब उस एलिमेंट पे जाएगा तो वो चीज़ इस यहाँ पे जो इंडेक्स की जगह हमने नोट डाला है, इट मीन्स एवरी टाइम देयर इज वन एलिमेंट टेकन हेयर। इस एलिमेंट को हम वो ये होगा ए पेयर ऑफ थिंग्स इन एन अरे। ये जो पेयर है इसमें पहली वाली चीज will be utilized for putting the buzzer on, second thing will be used for putting the buzzer off। अब ये ऑन और ऑफ का पैटर्न चेंज होगा, बजर को बजर ऑन हो टी टी या टी टी इस तरह, तो वो ड्यूरेशंस के बेस पर बारी बारी आप ये नोट के तौर पर इस्तेमाल कर लोगे इसका ऑन एंड ऑफ होना, एंड इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग लाइक ए रोबोट playing a song, his own way of singing, robotic way of singing in a very simple fashion। ठीक, तो आपने हमने बजर इस काम में इस्तेमाल किया और ये फॉर लूप का ये एक्सप्लेनेशन थी। ठीक हो गया। नोट 0 पे पहले एलिमेंट का ये इस्तेमाल होगा और नोट 1 पे पहले एलिमेंट का ये इस्तेमाल होगा। फिर जब लूप में दोबारा जाएगा तो फिर इस जगह पॉइंट कर रहा होगा, तो ऑन 0.5 के लिए होगा, ऑफ 1 के लिए होगा। फिर इस लूप में दोबारा जाएगा तो इस जगह ऑन 0.2 के लिए होगा, ऑफ 0.5 के लिए होगा। ये नोट 0 से पहला। जी सर। ओके, जी और सर, समझ आ गई है। ओके। तो अब हम कह रहे हैं कि मेन में इसको जब हम रन जी सर, समझ आ गई है। हेलो जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? ओके, तो अब हमारी ये क्लास जो रोबोट बीप है, इसको अब देखिए हमने ट्रू पे कॉल किया। सर आपकी आवाज़ कट रही थी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, वन ऑफ यू सेड कि समझ आ गई है, तो वर यू नॉट दैट, आपने पूछा था सवाल, आपको समझ आ गई इसकी जो मैंने पूरी बात दोबारा बताई है? यू हैव अंडरस्टूड दैट? ये क्वेश्चन है आपका? जी सर, समझ आ गई है, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो रोबोट बीप। जी सर, बिल्कुल ठीक समझ आ गई। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब अपने क्लास को कॉल
ओके, तो क्लास को अब ट्रू पैरामीटर पे किया, ये यहां पर इसने ट्रू को सेट करके ये वैल्यू ली है, और अब इसने हमने इंस्टेंस इसका बनाया क्लास का, ये रोबोट बीप ट्रू, ट्रू के साथ इंस्टेंस बनाया। तो अगर ये करेंगे तो ये जो हमारा टेस्ट वाला पार्ट है वो रन होगा, बजर ऑन फॉर 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, बजर ऑफ फॉर 1 सेकेंड। ओके, अब हमने अभी खुद, ये हमारी क्लासेस हैं जिनमें हमने इंपोर्ट करके यूज किया, ये वो खूबसूरत चीज़ है अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड आवर एम्फेसिस ऑन क्लास बेस्ड राइटिंग ऑफ द कोड। अभी हमने पहले जब टेस्टिंग की थी उसको एक्सरसाइज कराने के लिए, तो हमने डायरेक्ट में भी इंस्ट्रक्शंस भी दे ली या छोटे कोड लिख के टेस्ट कर लिए, लेकिन अब इसको रोबस्ट, ग्रोएबल, मॉडिफाइबल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्लासेस की अप्रोच को इस्तेमाल करना था। अभी हमने पिछले इंडिविजुअल कोड्स की क्लासेस बनाई 4, अभी जो हमने टेस्ट की 3 क्लासेस बनाई, टेल लाइट्स का भी शायद हम क्लास देख लेंगे उसका कोड। जो क्लासेस हमने बनाई, अब हम उन क्लासेस को यूज करके इकट्ठा, अपनी क्लासेस को यूज करके अपना मेन प्रोग्राम इसका बना रहे हैं। तो हमने क्या कहा, अब वी आर पुटिंग ऑल थिंग्स टुगेदर ऑफ अवर क्लासेस। हमने कहा रोबोट व्हील्स से ये इंपोर्ट कर लिया इस नाम से, इस लाइब्रेरी से, रोबोट बीप से ये इंपोर्ट कर लिया, रोबोट कैमरा से ये इंपोर्ट कर लिया, और टेल लाइट से ये इंपोर्ट कर लिया। इन 4 इंपोर्ट करके अब हम इनको यूटिलाइज करेंगे। अब हम एक क्लास बना रहे हैं रोबोट डांस के नाम से, जिसमें सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा करके इस्तेमाल कर लिया है। तो ये इसमें है, वो जो हमारे पास वो भी था एलईडी, हमने 2 लगाए थे वो उसकी टेल लाइट्स के तौर पर, और इस तरह। तो हमने उसके लिए यहाँ पे अब लाइट शो के लिए लाइट शो का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और उसके अंदर ये पैटर्न डाली है लाइट शो के लिए 2 1 4 5 3। ये आपका एक अरे है जिसके एलिमेंट्स हैं, उनमें इंटीजर वैल्यूज आपने डाली। अब आपने इसके इनिट में ये काम किए हैं कि ये जो आपके सारे जो तमाम ये क्लासेस थी, रोबोट व्हील्स और ये रोबोट बीप, टेल लाइट्स, ये इन सब को अपने क्लास वेरिएबल्स में असाइन कर लिया आपने यहाँ पर, ताकि आप इसको इस क्लास में इस्तेमाल कर सकें। फिर आपने ये एक डांसिंग का, जो कि अब सारी चीज़ों को पिछली बनाई हुई इकट्ठा लेकर एक सीक्रेट डांस वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। तो आपने अब एक मेथड बनाया, इसका नाम रखा लेट्स डांस इनकॉग्निटो। इसमें वो उसने सीक्रेट पिक्चर भी ली है, तो इस डांस का नाम उसने ये रख दिया। आपने अब ये एक फॉर लूप इसमें डाला जो है कि टेल लाइट रिपीट इन लाइट शो। लाइट शो के, ये हमारा लाइट शो का अरे है। लाइट शो ये बताता है कि भाई कितनी दफ़ा वो टेल लाइट रिपीट होगी, यहाँ से वो वैल्यू लेगा। इस लाइट शो पर आपने एक फॉर लूप डाला इस अरे के लिए, जो हमने अभी समझाया था। तो ये अरे है आपका लाइट शो। उस अरे के में ये आपका काइंड लाइट इंडेक्स है। इंडेक्स इस सेंस में है कि इट विल स्कैन थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट अरे। ओके, तो हम ये कह रहे हैं, तो इसमें हमने ये किया कि ये व्हील्स डांस रोबोट व्हील्स डांस का ये हमारा है जो अभी मेथड रोबोट बीप डॉट प्ले सॉन्ग,
tail lights dot alarm and robot camera dot secret dance. ये हमारे जो हमने इसके अंदर क्लासेस हासिल की हैं उनके मेथड्स हमने इस्तेमाल किए इन अवर दिस क्लास. ये जो हमने क्लासेस अभी बनाई है, रोबोट व्हील्स, रोबोट बीप और टेल लाइट्स और रोबोट कैमरा, इसमें ओके. तो अब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं. मेन में हमने कहा ये वाली. अब हमारी फाइनल चीज़ जिसमें सारे कुछ हमने इकट्ठे कर दिए थे वो ये था, रोबोट डांस. और इसमें हमने इसका इंस्टेंस बनाया और इस इंस्टेंस पे ये वाला मेथड अब कॉल किया, ये डांस इनकॉग्निटो, जिसमें ये सारे काम, ये सारी चीज़ें जो ओवर क्लासेस एंड कलेक्शन ऑफ क्लासेस, पुटिंग देम टुगेदर यूजिंग ऑल ऑफ देम. तो हियर इज इट, कंप्लीट testing at the class level code of our robot, which is a car with a head moving and camera. ये सारी उसकी कमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए. ओके, दैट सर इसमें ये जो इससे पीछे वाला जो स्लाइड है, जी जी, इसमें टेल लाइट रेपिटेशन की क्या वैल्यू है? ये जो आपने लिखा है ना, फॉर टेल लाइट रेपिटेशन इन सेल्फ लाइट शो. ओके. हाँ, ये देखो, ये जो लाइट शो का अरे है, ये हमारा अरे, लाइट शो अरे. इस पर हमने फॉर लूप लिखा है. फॉर लूप का मतलब है कि पहले वो ये वैल्यू लेगा 2, फिर 1, फिर 4, 5. अच्छा, ये जो वैल्यूज लेगा ये हमारे ये बहुत बड़ा सा वेरिएबल नजर आ रहा है, टेल लाइट रेपिटेशन. एक्चुअली ये अरे है कि टेल लाइट कितनी दफा ऑन ऑफ हो. ये हमने उस टाइम में जब अलार्म को सीखा था तो हमने ये देखा था कि, तो उस अब हमारा ये टेल लाइट्स डॉट अलार्म में ये पैरामीटर वहां से आया, ये वाला इस पैरामीटर को हमने यूज किया है. ये लूप एक तो इस वजह से कि अरे में 6 एलिमेंट्स हैं, जी 1 2 3 6 एलिमेंट्स हैं. तो ये उस वजह से फॉर लूप इस अरे पर चल रहा है. तो एक तो ये फॉर लूप हर एलिमेंट पे चलेगा. एक तो ये काम हो गया इस फॉर लूप से कि इट विल रन 6 टाइम्स, बिकॉज के अरे का साइज 6 था तो वो तो इसने रन होना था. उसी में तो आपका ये पैरामीटर है जिस पे वैल्यू असाइन होती है, ये भी हम फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं कई दफा. वो हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया कि ये यहाँ पर जब ये इस्तेमाल, ये टेल लाइट रेपिटेशन में ये वैल्यू आई भी है, ये वाली एक दफा आएगी वैल्यू 2, तो वो इस एक स्टेप में 2 दफा लाइट शो करेगा. हमने लाइट शो का पीछे कोड देखा था पीछे, तो वो जो लाइट उसका लाइट शो है वो 2 दफा रिपीट करेगा इस एक रन ऑफ फॉर लूप में. यानी फॉर लूप एक दफा चल रहा है, उसके व्हील्स ने डांस किया, उसने एक सॉन्ग पूरा, अब प्ले सॉन्ग में भी वो पूरे नोट्स का सीक्वेंस चल रहा है, यानी कंप्लीट सॉन्ग उसने किया, उसने पूरा डांस किया, फिर उसने पूरा एक लाइट शो किया, टेल लाइट्स का शो किया. टेल लाइट्स के शो में क्या नंबर वो इस्तेमाल करेगा, वो नंबर यहाँ पर इस जगह इसने लिया हुआ है, फॉर लूप की वजह से उसने लिया हुआ है इस अरे से. तो इतनी तो कंप्लीट लाइट शो हो गया. और फिर ये कैमरे को सीक्रेट डांस में, कैमरा सीक्रेट डांस का मतलब है वो पहले डांस मूवमेंट्स करेगा और बीच में एक पिक्चर ले लेगा. सही. और ये पूरी एक्टिविटी इट विल रिपीट सो मेनी टाइम्स जितने के इस लाइट शो के एलिमेंट्स है. देखो, एक चीज है लाइट शो के एलिमेंट्स की तादाद 1 2 3 4, तो ये हर एक के लिए इस फॉर लूप में रन होना है. अच्छा, जब हर केस में वो रन हो रहा है उस वक्त जो वैल्यू है वो भी इस्तेमाल की जा सकती है. उसने ये वैल्यू यहाँ इस्तेमाल कर ली, ये कि जब वो पहली दफा फॉर लूप रन हुआ तो वैल्यू 2 थी इस अरे में, वो 2 इसने इस्तेमाल कर ली. दूसरी दफा फॉर लूप इस्तेमाल हुआ तो वैल्यू 5 थी तो उसने 5 इस्तेमाल कर लिया फॉर दिस टेल लाइट्स. ओके,
इज दैट ठीक हो ओके? जी तो ये आपने रोबोट डांस को जी इस जी तरह से ठीक हो बनाया और फिर इसको एक डांस, ये वाला डांस करवाया जो ये हमने अभी सारा, जिसमें हर चीज इकट्ठी कर दी। तो अब हमारा इंटरफेसिंग, सेंसिंग, आउटपुट, बिल्डिंग ऑफ द होल थिंग फिजिकली हमने पहले पार्ट में किया। फिर इस पूरी चीज को स्टेप टेस्टिंग की, मे बी कि आपने इवन अपने कमांड मोड से ओके मूव इट एड, मूव इट बैक, स्विच ऑन द एलईडी, स्विच ऑफ द एलईडी। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप देख रहे हो कि मैंने जो चीज बिल्ड की थी उसकी तारें सही लगी हुई हैं और वो एलईडी ऑन होता है, व्हील चलता है, तो हमने वो किया। फिर हमने अब क्लास की शक्ल में इस पूरे कोड को पुट टुगेदर किया और उसको इस्तेमाल किया। तो हम वी आर इन एट लीस्ट टू दैट लेवल कि हमारा रेस्पबेरी पाई एंड ऑल इट्स इंटरफेसेस जो हमने बिल्ड किए थे, वी हैव कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड। ओके, अब हम जैसे कि हमेशा बताते हैं कि नो आईओटी थिंग इज कंप्लीट टिल दैट। अभी हमने थिंग्स का पार्ट पूरा कर लिया। एक एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन में सेट ऑफ सेंसर लगाए, चीज़ों को कंट्रोल किया, क्लास बेस्ड अप्रोच से उससे डांसिंग करवाए, उससे सीक्रेटली पिक्चर्स खिंचवाए। ये हमने थिंक के लेवल पे काम हो गया। कई एट टाइम्स आप खाली थिंक्स के लेवल पे भी काम करते हो, लेकिन IoT becomes interesting and complete when I also gets involved. IoT इंटरनेट, अब हम इंटरनेट इन्वॉल्व करेंगे। लकीली एंड इंटरेस्टिंगली हमने ये प्लान था हमें कि हमने बाद में ये काम लेने हैं इससे, तो हमने उसको भी अब से पहले जो आपकी लैब का भी हिस्सा है यार, अच्छा ओके, अच्छा, तो इसमें हमने ये चीज़ें पहले सीख ली। असल में हमने इनको सीखा हुआ है। आपकी बल्कि एक लैब भी आज पब्लिशिंग वाले पार्ट की भी उसमें है। तो हमने इससे पहले एक लैब की थी जिसमें हमने डैशबोर्ड बनाया था वेब पर। उस डैशबोर्ड में कुछ डाटा डाले थे जो ग्राउंड सेंसर से उस पर भेजे थे, पब्लिश किए थे, पब्लिशिंग। और उसी डैशबोर्ड पर हम कंट्रोल करने का हमने देखा था कि उस डैशबोर्ड से कोई चीज़ आप नीचे भेजें तो अपने इस रेस्पबेरी पाई पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि रेस्पबेरी पाई पे हमने सीखा कि आप एक बटन वहाँ प्रेस करें और उसके एक्शन में कोई काम करें, कोई एलईडी ऑन करें। ये हमने शुरू में की चीज़ें। एक, या जब वो रन हो तो उसकी बहुत सारे सेंसर की चीज़ों को मॉनिटर करें, प्रिंट करें, डिस्प्ले करें। हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले, अल्फा न्यूमेरिक डिस्प्ले पर खुद ही देखे, वहीं जनरेट हुए, टेम्परेचर की वैल्यू, ह्यूमिडिटी जो भी है वो वहाँ जनरेट की, वहाँ पे देखे। अब हम कह रहे हैं इंटरनेट पर इसको इसको इंटरफेस कर दें और इसके जो चीज़ें आउटपुट हैं वो वहाँ डैशबोर्ड पे डिस्प्ले कर दें और उसको इवन शेयर कर दें टू आवर अदर कोलीग्स और टीम मेंबर्स। वो अपने उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं चीज़ें, और फिर वहाँ पर बटन या कंट्रोल पॉइंट्स लगा के वो बटन वहाँ से प्रेस करें और यहाँ पर वो एक्शन हो। लेट्स से आपने वहाँ एक डांस के लिए बटन लगाया, जब आप प्रेस करोगे तो इट विल डांस हेयर योर रास्पबेरी पाई थिंग जो आपने बिल्ड किया हुआ। तो अब हम इंटरनेट वाले पार्ट पे कि पहले हम सेंसर्स के डाटा को जो रोबोट कार पर है उसको भेजेंगे वेब पर, वेयर इट विल बी पब्लिश्ड, और फिर हम उस साइट से, डैशबोर्ड से एक बटन लगा के प्रेस करेंगे जो आपका ये रास्पबेरी पाई कैप्चर करेगा डाउन, और उस पर कोई एक्शन लाइक डांसिंग, मूविंग द कार, सेल्फ ड्रिवन कार के कॉन्सेप्ट में वो चीज़ आएगी कि आप कार में ड्राइवर नहीं है और आप इस तरह नेट के जरिए से उसको एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप कंट्रोल कर रहे हो। ओके, सो हमने आपको बहुत सारी चीज़ें यूजफुली काम आ जाएंगी। हमने डैशबोर्ड भी वही रखा है, थिंग्स बोर्ड, जिससे आपको फेमिलियर करवाया है पीछे फॉर डूइंग सम अदर सिंपल थिंग, मे बी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। हम उसी को यूज कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम इस पर होगा।
ये हमारी वो कार है जिस पर हमारे ये सेंसर्स, स्पेशली अभी हम जिसको देखेंगे वो ये वाला, कि जी ये जो डिस्टेंस वाला सेंसर है, इसके डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन किस तरह ऊपर भेजें और डैशबोर्ड पर दिखाएं वहाँ, और उसको शेयर करें। ये इफ़ यू रिकॉल हमारा उसका सर्किट, ये इसका नंबर SCSR04 है। आप भी यही वाला इस्तेमाल करोगे। और इसको हमने पहले जब बेसिक सेंसर सीख रहे थे इसके बारे में हमने सीखा था, अभी भी दोहराया कि इसमें एक ट्रिगर होता है जिस पर जो रास्पबेरी पाई से एक ट्रिगर जनरेट होगा, पल्स, जिसकी वजह से इट विल जनरेट अ पल्स। वो पल्स रिफ्लेक्ट होके आएगी और वो सेंस करेगा ये, और वो आपको इको पे मिलेगी। और इन दो के दरमियान का जो टाइम है उसको आप एज ए डिस्टेंस ये मेजर कर देता है, तो आप उसको फिर यूज़ कर लेते हो। इट्स लाइक बिग सेंस में रडार, मगर ये अल्ट्रासोनिक बेस्ड है। आमतौर पे रडार्स इन प्लेसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि फोर्सेस में यूज़ होते हैं, या आपके एयरक्राफ्ट एरोप्लेन ट्रैफिक को के लिए यूज़ होते हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए। उनमें माइक्रोवेव बेस्ड पल्स जनरेट होके जाती है और आती है। इस केस में ये चीपर, लो कॉस्ट, सिंपल चीज़ बनाई है, तो इसमें हम अल्ट्रा सोनिक लेवल की ट्रांसमिशन रिसेप्शन करते हैं। मगर कॉन्सेप्ट वही है कि आप traveling time of a pulse to go and get reflected and come back and translate that delay to distance, जो हमने बड़ी डिटेल से किया था जब हमने इसको सीखा था। ये उसकी कनेक्टिविटी को दोबारा रिपीट हमने किया हुआ है, जो यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। ओके, तो हमने रोबोट कार का पाइथन के जरिए जो इस सेंसर को यूज करके डाटा का तरीका है उसको हम यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, रीफेमराइज करा रहे हैं, आपको रिकॉल करवा रहे हैं कि सिंपली GPIO 0 हमेशा आपको एक क्लास या मॉड्यूल दे देता है। वो इस केस में डिस्टेंस सेंसर के मॉड्यूल के नाम से आपके पास है, तो आप इसके अंदर वही इसका तरीका है कि डिस्टेंस सेंसर का ये जो क्लास है जो आपने लाइब्रेरी से ली है, GPIO 0 की लाइब्रेरी से, उसमें आप ये दो पिंस बनाते हो, बताते हो कि ट्रिगर आप किस पे दे रहे हो और ई को आपने कहाँ से लेना है। तो GPIO की वो पिंस जिस पे इस डिस्टेंस सेंसर की ट्रिगर और ई को कनेक्ट करते हैं आप, ये वो पिंस है GPIO की 18 और 17। तो ये आपने डिफाइन कर दिया, जिस तरह आप LED का बताते हो और बजर का बताते हो, इस तरह ही ये वो चीज़ है। सिर्फ ये कि दोनों इस नेम से दोनों चीज़ों को डिफाइन करने की आपको फैसिलिटी देता है। ये आपका इंस्टेंस बन गया डिस्टेंस सेंसर का। अब आप ये लूप चलाओगे कि अगर ये लूप इनफाइनाइट लूप है कि कंटिन्यूस चलेगा, लूप इज ट्रू, तो आपने अभी हमने सिर्फ इसको फिलहाल प्रिंट कर लिया कि डिस्टेंस ये आपका अपना कोड मार्क्स में है, और डिस्टेंस सेंसर डॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेंसर वाली इस आपके इंस्टेंस का पर आपने मेथड डॉट डिस्टेंस कॉल किया है, जो इसका बिल्ट इन मेथड है, इसका जिस लाइब्रेरी से आपने कॉल किया। ये मेथड आपने अभी नहीं लिखा, ये मेथड, ये रीयूज, कोड रीयूज बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने सेंसर डिस्टेंस इसका इस्तेमाल किया अपने इंस्टेंस पर, और आपने वहां से वैल्यू मिल गई, इसने ट्रिगर जनरेट किया, जहां भी कहीं ये पॉइंट कर रहा होगा उसका डिस्टेंस आपको मिल गया, मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिस्टेंस वो कह रहा है कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसने ये 100 से मल्टीप्लाई किया, और फिर स्लीप फॉर 1 सेकेंड, फिर रिपीट। ओके, अब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेंडली बनाना है। एज यूजुअल हम क्लास की शक्ल में सब चीज़ों को करते हैं, वहाँ सिर्फ कोड में देखा था, तो अब हमने इसकी एक क्लास बनाई है। हमने इसका नाम रखा है रोबोट आइज। दिस इज आवर क्लास। इसमें हम GPIO 0 टाइम, उनके डिस्टेंस सेंसर वगैरह की क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं, उनके मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, मगर अब ये हमारी क्लास है जिसमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को पुट टुगेदर हम कर रहे हैं। तो ये क्लास की शक्ल में अगेन
शुरू में आपने यही इंस्ट्रक्शन डाली कि कौन से पिंस पर आप इसे कनेक्ट किया है, और फिर आपने एक मेथड डाला कि गेट, ये आपका मेथड है गेट डिस्टेंस, और उसके अंदर आपने वही डाला डिस्टेंस गेट करने के लिए, उसके मेथड को यूज़ करके डॉट डिस्टेंस उस इंस्टेंस पे आपने वो मेथड इस्तेमाल करके और अपना ये जो मेथड इस क्लास में है गेट डिस्टेंस, उसमें वैल्यू एक्वायर की और इसको टेस्ट कर लिया एज ए क्लास। ये वही देखिए वही चीज़ अब आपने एज ए क्लास विच इज़ रोबोट है, तो आपने इसमें किया रोबोट आया इस अपनी क्लास का इंस्टेंस बनाया और फिर अब अपनी क्लास के इंस्टेंस पर इसको टेस्ट कर लिया और आपने इसमें कहा प्रिंट क्या किया आपने, अब ये रोबोट आइज ये आपका इंस्टेंस है इस क्लास का, इसका इंस्टेंस था जो आपने ये बनाया है, इस इंस्टेंस पे आपने अपना गेट मेथड अब बनाया बुलाया और इसको यूज़ किया और ये प्रिंट किया, तो ये आपकी क्लास की शक्ल में आपने इसको मोल्ड कर दिया। अच्छा, अब हमारा यू मस्ट बी रेडी फॉर शोइंग थिंग्स दिस इन अवर दिस लैब पब्लिशिंग रोबोट कार सेंसरी डाटा टू द क्लाउड। इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारा हम इसको शो करेंगे पब्लिश करके ऑन सेम थिंग्स बोर्ड, डैशबोर्ड आपने इस्तेमाल करना है और उस पर हमें ये जो सेंसरी डाटा भी हमने देखा है डिस्टेंस वाला, इसको वहाँ डायल्स वगैरह की शक्ल में शो करेंगे। ऑल द सेम पॉइंट्स एक्सेप्ट के नेम्स आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे जो अब इस कॉन्टेक्स्ट में है, हमेशा ऐसे ही होगा आपके डैशबोर्ड का तरीका। तो वो क्रिएटिंग ऑफ थिंग्स बोर्ड डिवाइस आपने ये किया, लॉग इन अकाउंट ये बनाया, लॉग इन किया, पहले लॉग इन अकाउंट बनाया और ये लॉग इन किया आपने, उसमें अकाउंट बनाया लॉग इन कर लिया और फिर वही तरीका के डिवाइसेस पे क्लिक किया और फिर आपने वो जो लार्ज ऑरेंज बटन जो हमने लास्ट टाइम देखा था और प्लस साइन के साथ बॉटम राइट कॉर्नर पे उसे प्रेस किया, ये सब चीज़ें आप अब कर चुके हो, उनसे फेमिलियर हो, वही सब कुछ एज इट इज़ एक और कॉन्टेक्स्ट में आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो। तो आपने वही कि ऐड डिवाइस पर नाम अब ये वाला अपना दिया नेम, अब नाउ इट इज़ रोबोट आइज़, ये रोबोट के आइज़ में डिस्टेंस सेंसर है और आप उसको डिवाइस की शक्ल में डैशबोर्ड पर, थिंग्स बोर्ड के डैशबोर्ड पर दिखाना चाहते हैं। तो ये इसमें आपको ये भी जो चाहिए MQTT इस एक्टिविटी के लिए, क्योंकि आपने कनेक्ट होना है डैशबोर्ड पे वेब के ज़रिए से और प्रोटोकॉल हम उसमें ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपने इंस्टॉल किया एज़ यूजुअल जिस तरह पहले किया था। और अब आप ये हमारा डिस्टेंस सेंसर, स्लीप, MQTT क्लाइंट जो है इस लाइब्रेरी से को इंपोर्ट किया एज MQTT, ये आपका नेम है एज, इसी तरह आपने JSON को इंपोर्ट किया और ऑल द कोड्स यू विल रिलेट इज सेम। सिर्फ अब आपको अगर उसको समझ के आपने इस्तेमाल किया है पिछले अपने उसमें, इट्स इवन ट्रिवियल, उसमें दो पैरामीटर्स थे, इसमें सिंगल को हम दिखा रहे हैं, इवन ईजियर देन दैट। सिर्फ मकसद क्या है कि इस तरह से क्लास बेस्ड अप्रोच रीयूज करना बिकम्स दैट कन्वीनियंट, खाली ये शो किया जा रहा है। तो आपने देखे अब आपने अपनी क्लास रोबोट आइज, इसको अब आप अपडेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस कि अब आपने इसको यूज़ करना है इसके साथ, अब रोबोट आइज का इंटीग्रेट करना डैशबोर्ड के साथ, इसकी आउटपुट को वहाँ भेजना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वही रोबोट आइज की क्लास को अपनी अपडेट किया है और इसमें ये अभी जो सेंसर वाला पार्ट था वो इसमें डाल दिया, ये हमने हमारे पास था, लेकिन अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए डैशबोर्ड वाले इंस्ट्रक्शन रिपीट सेम, वहाँ पर दो पैरामीटर्स जब हम पिछली दफ़ा कर रहे थे तो एक ह्यूमिडिटी और एक टेम्परेचर था और उस पर हमने इस काम को किया था, यहाँ उसकी जगह ये डिस्टेंस का पैरामीटर, अदरवाइज सेम थिंग। आपने होस्ट बताया जो कि आपका ये है डेमो पार्ट ऑफ thingsboard.io,
ये आपका होस्ट है जिसके ऊपर ये डैशबोर्ड आप होस्ट करोगे। ये एक्सेस कोड है जो उसने आपको दिया था जब आपने इसको ये बनाया है अभी, तो ये एक्सेस टोकन ये आपको यहाँ डाल दिया ये आपने। फिर आपने अपना ये मेथड जो अभी हमने बनाया था गेट डिस्टेंस का वो यहाँ इंक्लूड किया, क्योंकि आप एनहांस कर रहे हो। ये चीज़ पिछली है जो क्लास अभी बेसिक बनाई थी विदाउट डैशबोर्ड, वो है ये चीज़ें वो हैं जो इसमें डाल दी आपने। अब ये वाले एडिशनल चीज़ें हैं जो आप डैशबोर्ड के लिए कर रहे हो। अब आपने ये मेथड पब्लिश डिस्टेंस, इसका नाम पब्लिश डिस्टेंस रख लिया, वहाँ पे आपने ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रखा था, और आपने कहा ये मेथड जो आपने बनाया हुआ है गेट डिस्टेंस का ये लिया आपने, और ये आपको इसमें हमेशा इसके स्कीम में जो डैशबोर्ड जो डेटा लेना और उसके इंटरेक्ट करने का तरीका है उसमें वो ये इस फॉर्मेट में डायरेक्टरी की शक्ल में वो होते हैं। इस केस में आपने इस डायरेक्टरी में सिंगल डिस्टेंस के नाम से की और ज़ीरो ये इनिशलाइज किया और इसका नाम रखा सेंसर डाटा, मे बी लाइक प्रीवियस। इस सेंसर डाटा में ये तो इनिशलाइज किया ज़ीरो के साथ। अब आपने इसमें कोई वैल्यू डालनी है, तो आपने ये जो डिस्टेंस इधर अभी लिया है यहाँ पर गेट डिस्टेंस से जो ये डिस्टेंस अभी करंट डिस्टेंस लिया है जहाँ वो देख रहा है, इस डिस्टेंस को इस डायरेक्टरी में डाल दिया एट दिस की। ओके, अब ये इस MQTT का क्लाइंट आपके एंड का जो अब वो पब्लिश करेगा वो अपनी कनेक्ट, ये होस्ट है आपका, ये होस्ट है। इस होस्ट पे आपका रेस्पबेरी पाई इज ए क्लाइंट। ये अपने इसने ये डिस्टेंस डाटा को मेजर किया है और एज ए क्लाइंट अब इस डाटा को पब्लिश करेगा, होस्ट क्लाइंट एंड डाटा। ठीक, तो इसने MQTT की प्रोटोकॉल डॉट क्लाइंट, ये जो MQTT की लाइब्रेरी के नाम से उसने की थी, उसका क्लाइंट पार्ट को मेथड को यूज़ करके अपना इंस्टेंस क्लाइंट का बनाया, और इस इंस्टेंस पे ये काम किए कि यूज़र नेम पासवर्ड सेटिंग की एक्सेस कोड दिया, इस इंस्टेंस पे को कनेक्ट किया अपने इस क्लाइंट को विद होस्ट जो आप बता चुके हो कि ये होस्ट है, उस होस्ट से कनेक्ट किया। होस्ट की पोर्ट नंबर जिस पर ये वाली मौजूद है डैशबोर्ड की, ये एप्लीकेशन मौजूद है, वो पोर्ट का 1883 उसने बताया दिया हुआ है, और ये वो 20 सेकेंड्स जो डाटा के लिए हमने दिए थे। ये वो काम है कि आपका क्लाइंट is doing the publish, client publish के क्लाइंट के इंस्टेंस में जो इसने वहाँ से लिया था MQTT क्लाइंट से जो इंस्टेंस बनाया था उसका पब्लिश मेथड ये यूज़ कर रहा है। ये उसने MQTT वाले क्लास से यूटिलाइज किया है पब्लिश, ये आपने नहीं लिखा। और उसमें उसने कहा कि ये डिवाइस का टेलीमेट्री डाटा जो है इसमें ये जो सेंसर डाटा है ये पब्लिश कर दें बाय यूजिंग दिस json.dumps। ये उसकी तरीका है जिसके ज़रिए से वो बताता है कि क्या डाटा को पब्लिश करना है, आपने ये सेंसर डाटा को करना है जो आप ऊपर कर चुके हो, और फिर इसे क्लाइंट को डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा रिपीट ऑफ सेम थिंग्स जो हमने अभी पब्लिश के लिए पीछे किया था, सिवाय इसके कि अब यहाँ डिस्टेंस है सिंगल। इसको टेस्ट करने के लिए वही नेम मेन इसका इंस्टेंस बनाया रोबोटाइज का जो आपने अभी क्लास बनाई थी। हाँ, यहाँ आपने फिलहाल ये प्रिंट करके देखा कि भाई डिस्टेंस गेट डिस्टेंस आपका मेथड है इस क्लास का इंस्टेंस पे, इस क्लास का जो इंस्टेंस है इस क्लास के इंस्टेंस पे आपने यहाँ का मेथड लिया और उसको प्रिंट करके देखा कि मुझे ये क्या मिल रहा है, और फिर आपने इसको पब्लिश किया robotize.publish डिस्टेंस यूज़ किया। ये पब्लिश डिस्टेंस का मेथड अब आपने कॉल किया जिसमें ये उसको पब्लिश करेगा डैशबोर्ड पे। तो नीचे आपने यहाँ प्रिंट करके देख लिया, अब इसको पब्लिश भी करने के लिए वहाँ भेज दिया। अब वहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने नीचे वैल्यू थी उस इंस्टेंस पे जो मैंने प्रिंट की थी, क्या वही वैल्यू वहाँ पब्लिश शो हो रही है, ये आपको देखना है। तो अब ये उसके बाकी जो स्टेप्स थे कि आपने वो उसके लेटेस्ट टेलीमेट्री वाले ऑप्शन को वो चीज़ें भेजी हैं, अब वो वहाँ पहुँची हैं,
वहाँ पर आपने इसमें सिलेक्ट किया ये रोबोट आई वाले डिवाइस की डिटेल में, आपको सिलेक्टिंग लेटेस्ट टेलीमेट्री पर वो डिटेल जो आपने भेजी थी पब्लिश करने को, उसको एज ए होस्ट वो वहाँ पर आपको डिस्प्ले होगी। यहाँ पर वो डेट टाइम है, ये की है डिस्टेंस जो आपके उस डायरेक्टरी में आपने इस्तेमाल की है, जो जिसको आप यूज़ करते हैं उस पर्पस के लिए, और ये उस पर वैल्यू थी डिस्टेंस की 3.8 समथिंग, क्वाइट अ फ्यू डेसिमल, बट लेट्स से 3.8 इज द वैल्यू। ओके, ये वहाँ पर वैल्यू उसने रिसीव की है, पब्लिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस। यही वैल्यू हमें अब वहाँ पर हम देखेंगे पब्लिश डिस्टेंस से जो भेजी है, इसको वहाँ डायल की शक्ल में हम देखेंगे। ये पब्लिश डिस्टेंस वाला आपका कोड यहाँ शो हमने किया है, वो वहाँ एम्बेड हो गया है। ये अलग शक्ल में वो कोड था पब्लिश वाला, ठीक। और इसको फिर हमने एम्बेड भी कर दिया क्लास में, एंड वी हैव डिस्कस दैट। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप इसको अब बनाना चाहते हो, ये जो पब्लिश किया आपने सेंसर डाटा और वहाँ पर एज ए सेंटेंस ये मिल गया, इसको अब डायल की शक्ल में करना चाहते हो। तो अब आपने उसको सिलेक्ट किया जो ये वाला था, उसके यहाँ पर लेफ्ट पे ये टिक मार्क किया कि मैं अब इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ विजेट, और उसको देखना चाहता हूँ, डायल शाइल बनाना चाहता हूँ। तो जब इसको सिलेक्ट किया तो आपको ये शो दिस पर्टिकुलर विजेट का ऑप्शन मिल गया। तो आपने वो किया उस ओके, तो आपने फिर वहाँ पर शो ऑन विजेट को सिलेक्ट किया, तो उस पर फिर आपके पास चॉइसेस आए कि आपने डायल सिलेक्ट करने हैं, यानी विच फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइस यू वांट। आपने उसमें एनालॉग गेजेस वाले ऑप्शन को लिया उसके जो मेन्यू से, और फिर आप फिर उसने चॉइस दिया कि ऐड टू द डैशबोर्ड, यानी अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया है कि मैं इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन करूंगा अपने डाटा की, इस शेप में विजिट मेरा ये है। तो फिर उसको आपके डैशबोर्ड पे ऐड करने का वो ऑप्शन देता है, ऐड टू द डैशबोर्ड। तो आपने फिर ऐड टू द डैशबोर्ड किया, तो ये आपका वो विजिट जो आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ शो हो गया। तो ओके, ये आपको वैल्यू अगर आपके लेट से ये थी कोई सम 8 और समथिंग, तो वो डायल पे भी है और इधर नीचे भी है, और ये डिस्टेंस लिखा हुआ आ गया। जो की में वर्ड होता है वो यहाँ पेस्ट हो जाता है। और ये अच्छा, इसने डिफॉल्ट रेंज ये ली है -100 से +100, और 0 से आगे ये वैल्यू जो थी 08 वो दिखा दी है जो उस वक्त है। लेकिन अब आप इसको अब अगर न्यू डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हैं और उसकी रेंज चेंज करने के लिए या उस पर और चीज़ें ऐड करने के लिए, तो आपने ये न्यू डैशबोर्ड अभी बनाया है, इस पर बाद में आप चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये तो जब नया डैशबोर्ड बनाया आपने तो वो उसके लिए है, और बाद में इसी को सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग को, और उसमें जैसे पीछे हमने और डायल्स ऐड कर दिए और कार्ड ऐड कर दिए, या इस केस में आपने इसके डायल की रेंज भी कस्टमाइज आप कर सकते हैं। ये अभी इस रेंज में है, तो ये आपको ये अलाउ करता है कि ये मैं इसको अगला स्टेप तो ऊपर से इनपुट लेने का, मगर इसमें ये खाली ये वाला पार्ट ओल्ड है, तो ये हम देख लेते हैं कि आप इसके डायल की रेंज भी, कलर्स की कम्बिनेशन वहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स का आपको सिलेक्शन दे देता है कि चेंज कर लें इसके हिसाब से, और आप इसकी रेंज को चेंज करने के लिए आप दोबारा आपने उसको ओपन किया, कलर्स सेट किए, और अब आप इसकी रेंज को सेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने इसको देखिए, हमने 0 से और 100 कर दिया। तो पहले आपने इसको ये रेंज को यहाँ आपने 0 से 100 का सिलेक्ट किया। रोबोट आइज के जो डायल गेज के डाटा था, एडवांस्ड फीचर्स में यू कैन इवन चेंज द रेंज ऑफ द गेज एज यू वांट। तो ये एडवांस फीचर्स में इस तरह के काम दिए। तो आपने वो पहले -100 से +100 बाय डिफ़ॉल्ट था, उसको आपने 0 से 100 किया, और अब जो वैल्यू थी 7.2 वो शो हो रही है इस जगह। So you can customize that by using this advanced option to your dials.
ओके। और फिर हमने आपको सिखाई दिया था पिछली दफ़ा भी और अभी भी कि इसको जब आप बना चुके और डाटा भी देख लिया, उसको कस्टमाइज भी कर लिया, तो अब आपने इसको पब्लिक कर दिया डैशबोर्ड को, और उसका यूआरएल जो है वो आप अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कर सकते हो, एंड दे कैन गेट टू द सेम डैशबोर्ड एंड यूज इट फॉर देयर बेनिफिट। तो इस तरह ये डाटा शेयरिंग भी थ्रू ए वेब लेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं जिनके साथ में भी आप डैशबोर्ड पे कॉमन मिलकर काम करना चाहते हो, दे वांट टू प्रोवाइड देयर डाटाज ऑन द डैशबोर्ड, वो डाल दें, उन वो इस डाटा को लेके यूज करें इन देयर एप्लीकेशन। तो एज ए टीम, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह इस डैशबोर्ड को शेयर करके आप यूज कर सकते हैं जिस तरह हमने पहले किया। अब ये हमने सारा 2 पार्ट कर लिए हैं कि हमने ये सीख लिया कि किस तरह ग्राउंड पे अपनी डिवाइस थिंग को वर्क कराना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, फिजिकली असेंबल करना और कोड वाइज वर्किंग कराना, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने डैशबोर्ड पे इसके एक डाटा को, जिसमें सेंसर, डिस्टेंस सेंसर का डाटा था, उसको वेब पे भेज के डिस्प्ले किया और सबके साथ शेयर कर लिया। ये काम किया। एक छोटा सा पार्ट्स में रह गया, आई विल पुट द स्लाइड्स टू यू, आप उसको देख लीजिएगा कि अब हम खाली ये रह गया है कि अगर ऊपर अपने डैशबोर्ड से किसी बटन के ज़रिए से हम इसको कोई चीज़, कोई कमांड अपनी इस थिंग को देना चाहते हैं, जो हमारी इस रोबोट कार को, जिसमें हम शायद ये करेंगे कि एक बटन वहाँ प्रेस करें और वो डांस का सीक्वेंस अपना दिखाए, ताकि आप ये काम फिजिकली, आपको उस रोबोट पे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, यू मे बी सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और आप उस पर ये कोई चीज़, टेकिंग पिक्चर, डूइंग डांसिंग, डूइंग व्हील डांसिंग, डूइंग हेड डांसिंग, वो आप कंट्रोल करें वहाँ से। तो अब सिर्फ कंट्रोलिंग का जो कोड जो हमने पहले भी देखा है, उसको यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन होंगे तो नेक्स्ट टाइम पूछ लें, अदरवाइज मे बी आई go through that for your help to this. So we have now almost a complete thing to our ये चीज़ बाद में इसी के साथ डीप लर्निंग की चीज़ें ऐड करके एक फुल फ्लेजेड सेल्फ ड्राइविंग कार हम बिल्ड कर सकते हैं, जो आजकल का इन एरियाज में आईओटी और डीप लर्निंग के एरिया में इट्स ए हॉट क्रेज ऑफ building these things and lot of interesting activities happening there. तो our this both courses will merge. अभी IoT का तमाम पार्ट हमने इस पार्ट में कर लिया, इससे हम बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। इसी के अंदर इंटेलिजेंस को ऐड कर देंगे अपने डीप लर्निंग वाली, तो वो ऐसे बहुत से काम भी कर लेगा कि रोबोट अपनी आईज से देखेगा और वो बताएगा कि मिस्टर फलां हैज़ एंटर्ड दिस बिल्डिंग बाय नेम एट दैट टाइम एंड इन्फॉर्म यू एट एनी टाइम, जो हमने देखा भी है कि ये काम हम कर सकते हैं। और इस तरह ये आप सिक्योरिटी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, डिफेंस के लिए, अटैक के लिए, वॉर टाइम सिचुएशन के लिए, पीस टाइम एप्लीकेशंस के लिए, तो बहुत सी जगहों पर ये कम्बिनेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग। You, we luckily we have got all these things for you to work on. ये एक हमें बेनिफिट है, हमने पहले से ये सब कुछ since quite some time we were working on that, तो all is in our hand now. ठीक है, तो आपको ये सारे काम जो हम कह रहे हैं आप साथ साथ कर भी रहे हो, लेकिन ये अब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की शक्ल में जो हम ग्रुप बना दिए आपके, वो ग्रुप्स अब ये सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स करेंगे। हर ग्रुप हर प्रोजेक्ट को करेगा। ग्रुप का मकसद है कि आप एज ए टीम ऑफ 3-4 पीपल उस पर काम कर रहे हैं, फोकस करेंगे, सब लोग उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हर एक को आंसर देने के लिए एहलियत होनी चाहिए। हाउएवर आप जब ग्रुप के तौर पे उस पर वर्क कर सकते हैं लर्निंग के लिए। तो अब हमारे सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, बल्कि एक पहले भी हमारा प्रोजेक्ट आपको दिया है। एनी क्वेश्चन? इफ देयर इज नो क्वेश्चन, we are finished with our time and we can close. Do you have any questions, please? Okay. So thank you very much. We will meet in the lab. Allah Hafiz.